हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया ये चैप्टर हमारा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम दक्षिण एशिया के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इस जो है वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत जो है करेंगे, समझेंगे क्वेश्चनों को और उसके आंसर को एनालाइसिंग करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा वो काफ़ी महत्व रखेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next 7th question is most important here for the exam view. Question here: democracy is become the first choice of the people of South Asia. Justify the statement. You know that there is a most important question here. Democracy is become the first choice of the people of South Asia. South Asia is a maximum country there is the democracy, but time to time there is suspended for democracy. But India has continually follow a democracy rule. This is the proof there is South Asia there is a first choose is a democracy. Let's see answer. Democracy has become the first choice of the people of South Asia. It is now that important. Democracy has become a first choice of people of South Asia. According to the several is conducted, their results show that all the 5 countries in South Asia result support of democracy. There is a 5 countries of South Asia result support to the democracy, and people belonging to different region, ordinary citizen, and rich as well as poor. All view there is an idea of democracy positive and support the institution of their representative of democracy. This is important. People belong to a different religion, ordinary citizen, rich as well as poor, and all will there is an idea of democracy positively and support the institutional representative of democracy. For instance, let's see what is here a rule and why there is a first choice of here democracy for the South Asia country. The first point arrive here. The Nepal has a transfer into the democracy for a monarchy. This is important. There is the Nepal has a transfer into the democracy for a monarchy. I remember you 1990 there is the Nepal is a support to the democracy, but 2002 the democracy is suspended and monarchy has started. But again 2006 the democracy will begin on Nepal. There is the most important transfer into the democracy for monarchies. And the next year Sri Lanka and India have a successfully operated a democratic system since they are independent from the British. You know that there is the most important. Sri Lanka and India have a successful operated a democratic system since they are independent from the British. Bhutan transferred from monarchy to the democracy.
know that Bhutan, they transferred to the monarchy to democracy, and Maldives from a sultan to republic with a presidential from along with the multi-party system. Maldives from a sultan to be a republic with a presidential form along with the multi-party system. That's important. And thus, this can be concluded that there is a mixed record of democratic experience. The people, all the countries of South Asia share the aspirations of democracy. This is important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लाता है। और मेरा विश्वास है कि जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, कहते हैं इन्हीं क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, सिर्फ बदला हुआ रहेगा उसका क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। कहते हैं क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आंसर सबको पता होता है और क्वेश्चन किसी को भी पता नहीं होता, तभी तो एग्जामिनर हर तरह क्वेश्चन देता है और आप कन्फ्यूज़ हो जाती हो, लेकिन बाद में आपको जो है वही आंसर आपको पता चलता है। फिर आप अफसोस करते हो कि ये आंसर तो मुझे पता था। इसलिए त्रिपाण हमेशा कहता है कि सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए था। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन हम जो देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन हमें बताती है कि लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जनरल सी बात है कि लोकतंत्र जो है दक्षिण एशिया के लोगों के लिए पहला पसंद बनता जा रहा है, और इस कथन को आपने सिद्ध करना है कि किस कारण से, कैसे। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नतीजे बताते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी 5 देश लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग, आम नागरिक, अमीर और गरीब सभी लोकतंत्र के विचार को सकारात्मक रूप से देखती हैं। यानी देखा जाए तो लोकतंत्र हर एक व्यक्ति जो है मानता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन भी करता है। अब कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं जिससे जो अंतर्गत ये बात साबित करता है कि सारे के लोग जो हैं, यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं वो लोकतंत्र को बहुत पसंद करते हैं, और ये बात क्लियर किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए इन्हीं बातों पर जो है आगे हम विस्तार पूर्वक सोचें और विचार करें कि आखिर किन कारणों से जो है लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम नेपाल की करें तो नेपाल में आपको पता है राजशाही से लोकतंत्र में तब्दीली हो गई है। पहले नेपाल में देखा जाए तो 1990 से पहले के दशक में राजशाही था, लेकिन वहाँ के लोगों ने स्ट्राइक करके, आंदोलन करके 1990 में राजा को मजबूर कर दिया कि देश को जो है लोकतांत्रिक किया जाए, और देश 1990 में लोकतांत्रिक भी हो गई। फिर बात आई 2002 में, जब राजा ने हरकंडे अपना के, हर तरह के पैतरा अपना के लोगों को मजबूर करके फिर से जो है राजशाही शासन को लागू कर दिया और लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया। फिर क्या हुआ, लोग भी पीछे नहीं हटे और फिर 2006 में फिर से आंदोलन हुई, फिर से संघर्ष हुआ और फिर से राजा को जो है वहाँ पर राज्यसभा के जो है लागू करना पड़ा, यानी वहाँ पर गठित करना पड़ा, फिर से लोकतंत्र को बहाल करना पड़ा। लेकिन अब लोग यहाँ तक चुप नहीं रहे, लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक संविधान भी होना चाहिए। फिर वहाँ पर 2006 में संविधान का भी निर्माण किया गया और तब से आज तक जो है वहाँ पर करीबन लोकतंत्र का ही राज चल रहा है, राजशाही नहीं आई है। तो ये बात यहाँ पर साफ करता है कि लोगों को लोकतंत्र बहुत पसंद है, क्योंकि कभी राजा का राज्य, कभी लोकतंत्र का राज्य। चलिए ये राजा का जो है अपना एक षड्यंत्र है कि राज्य को ख़त्म नहीं किया जाए, अपने शासन को बरकरार रखा जाए, इसलिए लोगों में जो है लोकतंत्र की भावना को ख़त्म किया गया। लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत समझदार थे, कहते हैं दक्षिण एशिया के जितने भी जो लोग हैं वो लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं, और ये नेपाल की बातों से साफ यहाँ जाहिर होता है। और यहाँ नेपाल की ही बात ना करें, कहते हैं अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद में श्रीलंका और भारत सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित किया है। यानी देखा जाए तो आज हम
2023 में जो है बिलोंग कर रहे हैं और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तब से जो है भारत ने अब तक जो है लोकतंत्र का ही सहारा लिया है। लेकिन आगे आने वाला समय में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं भारत में, ये इसमें प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति में हालात पैदा होते जा रहे हैं लगता नहीं कि लोकतंत्र अब यहाँ पर जो है बच सकेगा। क्योंकि कहते हैं जो सत्ता के लालची लोग सब हैं भारत को कई टुकड़े करने में लगे हुए हैं, तरह तरह के जो है हड़कंडे अपना रहे हैं और तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाते जा रहे हैं। तो जनरल सी बात है, जो इतने सालों में नहीं हुआ कहीं अब वो हो ना जाए, ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। श्रीलंका में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ संघर्ष अच्छा नहीं रहा है। कहते हैं लोकतंत्र तो है, भारत में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, लेकिन श्रीलंका में सिर्फ एक ही धर्म की प्रोटी दी जाती है, सीली की दी जाती है और तमिली को जो है वहाँ पर नकारा जाता है, जिसके कारण लोकतंत्र होने के पश्चात भी यहाँ पर जो सरकार सिर्फ सीली की तरफ ही नज़र रखती है। तो इसके कारण भी लोकतंत्र होने के पश्चात भी यहाँ पर जो है दो रवैया हो रही है, जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कभी भी सही नहीं होगा। आगे हम भूटान की बात करें तो भूटान जो है राजाशाही के से लोकतंत्र परिवर्तन हुआ है। भूटान ने भी वहाँ पर राजशाही तंत्र थी, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सभी देशों ने अपने आप को अलग कर लिया था। तो भूटान भी, जैसे बांग्लादेश भी व जैसे पाकिस्तान भी, सब के सब अलग हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों को लोकतंत्र बहुत पसंद था। उस समय राजवाड़े थे, प्रिंसेस स्टेट था, तो उन्होंने अपने स्टेट को प्रिंसेस स्टेट ही रहने दिया, भारत में सम्मिलित नहीं हुए। तो वो जो है अब वहाँ के लोग जो है भारत को देख के लोकतंत्र की मांग किया और वहाँ पर जो है उन्होंने राजशाही से लोकतंत्र में बदल डाला। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव भी इसके पीछे नहीं रहा है। मालदीव बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रपति शासन प्रणाली के साथ जो है सल्तनत के गणतंत्र बना लिया है, यानी मालदीव भी पीछे नहीं रहा है, वो भी जो है बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रपति शासन प्रणाली को भी जो है सल्तनत गणतंत्र से बना लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि सब बातों से एक बात तो साफ हो जाता है कि इस निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतांत्रिक अनुभव को मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशिया के सभी लोगों ने लोकतंत्र की आकांक्षाओं को साझा करते हैं। यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, जितने भी यहाँ पर लोग निवास करते हैं, उनको लोकतंत्र में बहुत विश्वास है। और लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होती है और लोग अपने मनमर्जी जो है सरकार चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज लोकतंत्र का अर्थ बदलता जा रहा है। आप जनता हो वो भी गलत तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप लालचों में आ जाते हो, लोगों के जो है गलत बहकावे में आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने प्रतिनिधि जो चुनते हो बड़े सोच समझ के चुनिए, क्योंकि आपका वो प्रतिनिधि आप पे 5 साल राज करने वाला है, ठीक है। और मुझे पता है जब इलेक्शन हो जाता है तो कोई व्यक्ति का हाथ नहीं उठता है कि भाई हम सरकार को चेंज कर दें, क्योंकि सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो जब भी आप वोट करते हो, लोकतंत्र को अगर आपको बचाना है तो ऐसे शासक चुनिए जो आपके लिए रहे, आपके लिए कार्य करे। ये ना कहे कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ किताबी बातों में नहीं होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसको करके दिखाने से होता है। सबका है, किसी ने गरीबी हटाओ के नारा लगाया, किसी ने बेरोजगारी हटाओ का नारा लगाया, किसी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया। दोस्तों नारों के पीछे नहीं चाहिए, नारे तो देना तो सबका एक कर्तव्य होता है, तरह तरह की बातें आता है, लेकिन बात है कि आपको समझना है, आपको जानना है और आप अपने लिए प्रतिनिधि ऐसे चुनिए जो आपके लिए कार्यरत हो। कहते हैं अपने घर के लिए ना हो, ना अपनी जेबी गर्म करने के लिए हो, सिर्फ आपकी भलाई चाहते हो। और जनता की भलाई तब होता है जब रोजगारी ख़त्म होगी, अनपढ़ता ख़त्म होगा, महंगाई ख़त्म होगी और संप्रदाय दंगा फसाद ख़त्म होगा, तब जाके जो है कोई भी देश आगे बढ़ सकेगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप भी लोकतंत्र को पसंद करते हो, अगर साथ में तिरपान स्टडी सेंटर को भी पसंद करते हो, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, बस दोस्तों चैनल पर तो मेरे बहुत से बंदे आते हैं, बहुत से आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं और परे मारते हैं और बाद में फिर मुझे कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो आया नहीं। अरे भाई वीडियो तो आया, लेकिन आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला और आप उस वीडियो से अनभिज्ञ रह गए। अब इतने सारे वीडियो में ढूंढना आपके लिए बहुत दुष्कर्म कार्य हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना हमेशा
चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।